बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Most welcome to first year physics class. I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Dear students, this is my YouTube channel. You have to subscribe it for getting latest video of your physics subject. Now, dear students, we come to our topic. Now, our topic is a dimensional analysis. Part 1, we discuss about the dimension of physical quantity, and now dimensional analysis, which is a part 2 of the dimension of physical quantity. Now we discuss about the dimensional analysis. What is a dimensional analysis? Dimension analysis can be used to derive an equation, mean correctness of equation. Further detail is that used to check the correctness of given formula. The equation is given, then we have to check it whether this formula is correct or not. So it is dimension analysis used for that purpose. This is the first purpose. We can derive an equation. We can use it to check the correctness of this equation or formula. So this is the first use of the dimension analysis. Now second is checking the homogeneity of the physical equations. Then what is the homogeneity of the physical equation? So here homogeneity, what is the meaning of homogeneity? Homogeneity means if we have any equation, if dimension on both sides of equation are same, it means that this equation is a homogeneous. This equation is a homogeneous, and this principle is called a homogeneity of the physical equation. This principle is called homogeneity principle of physical equation. Here at this principle, we take any equation and we take the dimension on both sides of equation and we resolve it and check it. If dimension on both sides of equation are correct, then we say that this equation is this equation has a homogeneity. Mean homogeneity principle is applying on this equation. If both sides are not correct, then we say that it is not a homogeneous equation. So this is the detail of the homogeneity of the physical equation or homogeneity principle. If both sides of the equation are same, mean their dimension are same, then we say that this equation is a homogeneous equation or homogeneity of the physical equation. If both sides of dimension are not correct, mean they are not equal to each other, then we say that this equation is not a homogeneous equation. Next, dear students, that is find out the dimension and units of derived quantities. We can use dimension for the find out the dimension analysis used for the find out dimension and units of derived quantities. तो इनके लिए हम क्या करते हैं, dimension analysis use करते हैं. Last but not least, that is deriving a possible formula. कहते हैं कोई possible formula हम जो है derive करने के लिए dimensional analysis का क्या करते हैं, use करते हैं. तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास है dimensional analysis के uses हैं. एक आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक कर सकते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हवाले से आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस है या नहीं है. एंड लास्ट आपके पास क्या है, दैट इज डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, यानी कि कोई भी पॉसिबल फार्मूला उससे आप डिराइव कर सकते हैं. एंड वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डायमेंशन एंड द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज. फॉर दैट पर्पस we can use the dimensional analysis. तो these students इसकी एग्जांपल देखते हैं. जैसा कि हमने यूजेस के हवाले से बात की है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं. दैट इज चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन. जैसा कि आपको बताया कि व्हाट इज द होमोजेनियस प्रिंसिपल या होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन. तो इसमें मैंने आपको बताया है कि कोई भी इक्वेशन हम लेते हैं
तो उसके दोनों साइड पर हम डायमेंशन अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास क्या है, डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम, then we say that this equation is a homogeneous equation, or homogeneity principle is applying on the physical equation. So example देखते हैं, example 1.4. example क्या है, check the correctness of a relation v is equal to square root f multiply l divided by m. This is the equation, and he is telling that v is the speed of the transverse wave. तो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपने फिजिक्स क्लास 10th में आपने स्टडी किया होगा। तो कहते हैं कि आप पास ट्रांसवर्स वेव है और v से मुराद क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है, एंड देन लेंथ l है आपके पास, दैट इज द स्ट्रेंथ की जो लेंथ है, जो आपका स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपके पास क्या l है, और f से मुराद क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है जी, यानी जो रस्सी के ऊपर आपके पास ये ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। जैसे कि आपको टीचर ने बताया होगा कि ट्रांसवर्स वेव जो है, जब आप रस्सी को जर्क देते हैं तो वेव्स क्या होते हैं, मूव करती हैं, तो ये आपके पास अप एंड डाउन, ये आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, दैट इज क्रॉस एंड ट्रफ। तो कह रहे हैं कि रस्सी आपके पास, तो रस्सी को एक सिरा आपने बांधा, दूसरी सिरा पकड़ जर्क दे रहे हैं और वेव्स के अप एंड डाउन क्रॉस एंड ट्रफ सूरत में जा रही है, दैट टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास उसके वाले से है, दैट इज v इज इक्वल स्क्वायर रूट f मल्टीप्लाई l डिवाइडेड बाय m। f से बात क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, कितनी, यानी आपने रस्सी को खींच रखा है, तनाव कितना है उसमें, टेंशन कितनी है, l से मुराद क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, m से मुराद आपके पास क्या है, मास ऑफ द स्ट्रिंग है, और v से मुराद क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है। तो ये हमने इस इक्वेशन का एनालिसिस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे इसमें डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं कि होमोजेनियस प्रिंसिपल इस पर अप्लाई है या नहीं है जी। आपके पास इक्वेशन v इज एफ एल अंडर बाई एम इन स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, जो इसका तरीका कार स्टूडेंट्स, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या, v है, दैट इज स्पीड, इसका हमने डायमेंशन ले लिया, दैट इज एल टी माइनस 1 जी। ये आप देखें कि आपके पास स्पीड का जो डायमेंशन है दैट इज एल टी माइनस 1, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, दैट इज v स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। इसमें हमने क्या कर दिया, डायमेंशन इंसर्ट कर दिए वेलोसिटी के, तो सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या है, उसके जो डायमेंशनली आपके पास है दैट इज एल टी इनवर्स। तो ये आपके पास क्या, इसके डायमेंशन है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, दैट इज एफ एल डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या है, आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके डायमेंशन इंसर्ट करते हैं जी। तो स्क्वायर रूट को हमने यहाँ देखें स्टूडेंट पावर 1/2 कर दी है, लिख दी है, तो ये आप पास स्क्वायर रूट लिखा हो या आप पास पावर 1/2 हो, इसका मीनिंग एक ही है जी। अब हम क्या करें, इसमें ये देखें फोर्स F एंड देन आगे आप पास लेंथ के डायमेंशन, हम इसमें डायमेंशन अप्लाई कर रहे हैं, और आप पास इक्वेशन मास के डायमेंशन, यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, सिंपल जो है डायमेंशन के सिंबल अप्लाई कर दी कि हमने राइट हैंड साइड लेके अब हम क्या करें, इस पे डायमेंशन अप्लाई किए। अब हम यहाँ देखें तो ये आपके पास क्या है, फोर्स के डायमेंशन हमने अप्लाई किए, दैट इज एम एल टी इनवर्स 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास क्या है, फोर्स के डायमेंशन हो गए। उसके बाद क्या है, लेंथ का डायमेंशन एल है, जैसा आपको बताया था लास्ट सेशन में, और उसके बाद क्या है, मास है, उसका डायमेंशन एम है। और ये देखें अब हमने मास को ऊपर ले आए हैं, तो यहाँ पे पावर क्या होगी, इसकी -1 पावर होगी है, इसलिए है कि पहले ये डिनोमिनेटर में थी, अब आप पास ऊपर आ गए न्यूमिनेटर में, इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, माइनस हो गया, और होल आप पास पावर इसकी क्या आ गई, 1/2 आ गई। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, स्क्वायर रूट है, होल पावर 1/2 है, तो यही आपके पास पावर 1/2 हमने यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद आप देखें तो अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, जो सेम आपके पास क्वांटिटी है उनके डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये देखिए आप पास m, यहाँ पे m पावर 1 और इधर आप पास m पावर -1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। जैसा कि रूल आपको मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि जब आपके पास दो वेरिएबल सेम हो और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड या माइनस हो जाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, हमने मल्टीप्लाई किए m, तो इसके एक्सपोनेंट क्या है, 1 - 1 हो गया, क्योंकि एक का आप पास ये एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपके पास m का एक्सपोनेंट क्या है, 1 - 1 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आफ्टर देन लेंथ है, यहाँ भी आप देखें ये आपके पास लेंथ इधर भी मौजूद है
और यहाँ पर भी आपके पास ये लेंथ मौजूद है, दोनों मौजूद है। आपके पास लेंथ के डायमेंशन को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, इनके डायमेंशन आपस दोनों में पॉजिटिव है, तो 1 + 1 ये आपके पास के डायमेंशन आगे आपस में ऐड हो गए एक्सपोनेंट। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, टी एक ही है, लिहाजा हमने उसको ऐसे ही लिख दिया t⁻⁻2 एंड देन आपके पास होल पावर 1/2। अब हमने क्या, किसी साल के m पावर 0 आ गए, यहाँ देखें ये आप देखें m को, अगर आप देखें इसके वेरिएबल जिसका एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और जहाँ 1 पुट कर दें लेकिन मल्टीप्लाई 1 वही चीज आ जाती है, लेकिन एक ही बात है जी। और उसके बाद देखें l पावर 1 + 1 जमा क्या बन गया, l पावर ये देखें 2 बन गया जी, एंड देन t पावर -2 और आगे आपके पास क्या है होल पावर 1/2। अब हमने क्या किया है कि जो आपके पास ये बाहर एक्सपोनेंट पावर 1/2 इसको हमने अंदर जो है दोनों जो वेरिएबल्स हैं लेंथ और टाइम t इनको दे दिया है। तो अगर आप देखें गौर से तो आप ये पावर यहाँ 2 और 1/2 ये आपस में कैंसिल हो गए, आप पास यहाँ l की पावर क्या आ गई है 1 आ गई है जी। इसी तरीके से आप पास t पावर -2 था तो मल्टीप्लाई 1/2 ये 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ इधर -1 आ गया जी। यूँ आपके पास फाइनल डायमेंशन आपके पास जो राइट हैंड साइड के आए हैं दैट इज एल टी इनवर्स, यानी आपके पास ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ गई है। अब आप देखें तो अब हमने चेक करने के आया ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है, तो ये आप बात देखें ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है, मैं सर्कल यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो आपके पास क्या है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज एल टी इनवर्स एच। और यहाँ आप पास राइट हैंड साइड इक्वेशन आप देखें और यहाँ पर भी आपका डायमेंशन क्या है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज एल टी इनवर्स है। इसका मतलब क्या है, दोनों डायमेंशन जो सर्कल मैंने लिखे हैं ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, यानी डायमेंशन on left hand side of equation is equal to dimension on right hand side of equation। ये हमने नीचे लिख भी रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट है जी। ये इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है और ये आपके पास क्या होमोजेनियस इक्वेशन है। तो सो ये हमने क्या कर लिया, उसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया विद एग्जांपल्स। डी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक आपके पास एग्जांपल जो है दैट इज 1.6, इसकी फर्दर प्रैक्टिस हो रही है डायमेंशन ऑफ फिजिकल हमें फिजिकल इक्वालिटी एंड इट्स यूनिट्स उसके हवाले से। तो कहते हैं फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ और ड्रैग फोर्स F for a spherical object of radius r moving with the velocity v given as F is equal to 6 by eta r v। तो डी स्टूडेंट ये आपके पास क्या है जो विस्कोसिटी के हवाले से है उसको डिस्कस किया जा रहा है स्टोक्स थ्योरम को यूज करके। इंशाल्लाह चैप्टर 6 में आप जो है फ्लूइड डायनामिक्स में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस वक्त जो है उन्होंने बताया है कि आपके पास एक फ्लूइड है जिसपे स्टोक्स लॉ को यूज करते हुए हमने ये रिलेशन लिखा है F = 6 by eta rv। तो ईटा आपके पास क्या है, ये जो है विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। विस्कोसिटी क्या होती है, यानी कि कोई भी फ्लूइड है यानी उससे जब फ्लो करवाया जाए तो कोई फ्लूइड जितना तेजी से मूव करता है इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। दूसरा लफ्ज में कहें फ्लो रेट कह लें जी। अगर ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा वो आस्ता आस्ता क्या करता है फ्लो करता है। तो ये इस हवाले से बात की जाए, जैसे आपके पास हनी है शहद है, उसको अगर आप जमीन पे गिराएं या आप ऊपर बाटल से पकड़ के नीचे उड़ेल दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करेगा जी। जबकि दूध या पानी या कोई और किसी का आगे आप पास लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा वो तेजी से मूव करेगा जी। तो ये आप इससे मुराद आपके पास क्या है विस्कोसिटी है। अगर फ्लो रेट ज्यादा हो तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है कम है, और अगर आपके पास फ्लो रेट हाई हो यानी उसकी विस्कोसिटी कम है, और अगर आपका फ्लो रेट अस्त हो यानी फ्लूइड क्या आस्ता आस्ता आराम आराम से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है और उसका स्पीड का स्लो है। ये आपके पास क्या कहलाता है विस्कोसिटी कहलाता है। ये एक स्टोक साइंटिस्ट है उसके नाम से उसने रिलेशनशिप दिया। तो यहाँ से हमारा असल क्वेश्चन क्या है कि हमने ईटा जो विस्कोसिटी है इसको मैं जो है सर्कल कर रहा हूँ, इसके डायमेंशन हमने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं और इसकी यूनिट के हवाले से क्या करनी है बात करनी है। जैसे कि डायमेंशन एनालिसिस में हमने यूजेस में पढ़ा था कि आपके पास डेराइव क्वांटिटीज उसकी यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए और उसको डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का क्या करते हैं
यूज करते हैं। ये उसके वाले से ये एग्जांपल है जी। तो आर से मुराद आप जैसे बताया रेडियस है, एफ से मुराद क्या है ड्रैग फोर्स है, और वी से मुराद यहाँ क्या है वेलोसिटी है जी। पाई आपके पास कांस्टेंट है और 6 आपके पास नंबर है। तो डी स्टूडेंट जैसा कि आप बताया था 6 पाई आपके पास देखें तो ये आपके पास क्या है एक कांस्टेंट है, इन 6 आपके पास नंबर है, पाई आपके पास क्या कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है 3.14 होती है या 22/7 होती है। तो कहते हैं ये नंबर्स है, तो इसके हवाले से आपके पास जो डायमेंशनल एनालिसिस है या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसके वजह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता जी। यानी सादा लफ्ज़ों में यूं कह लें कि नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते, ये डायमेंशन लेस टर्म है जी। 6 और 5 ये टर्म जो इसमें मौजूद है दैट इज अ डायमेंशन लेस, इसके डायमेंशन नहीं होते क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और पाई भी आपके पास क्या है, इसके अगर आप आंसर लिखें तो ये भी आपके पास क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ये एक नंबर मान जाता है, ये आपके पास क्या डायमेंशन लेस है। लिहाजा आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो जब हम डायमेंशन लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी जी, दैट इज f इज इक्वल टू f डायमेंशन इज इक्वल टू ईटा r v दैट आर देयर डायमेंशन। तो ये आपके पास क्या है इसके डायमेंशन है। अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, क्योंकि हमारा असल काम तो क्या है विस्कोसिटी के डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ये आप देख रहे हैं विस्कोसिटी इसके डायमेंशन हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ आप देखें कि ईटा के साथ रेडियस और वेलोसिटी v जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। आपके पास ईटा का फार्मूला जो डायमेंशन वाइज आएगा दैट इज ईटा इज इक्वल टू f डायमेंशन डिवाइडेड बाय r डायमेंशन इनटू डिवाइडेड बाय v वेलोसिटी के या स्पीड के डायमेंशन है। इस तरीके से हमने क्या कर लिए इस फार्मूले को हमने जो है रीसेट किया है, हमने ये फार्मूला जो है रीअरेंज करके हमने हासिल किया है। तो डी स्टूडेंट से जो हमने अभी एग्जांपल बयान किए उसमें हमने डायमेंशन जो है यूज किए हैं और उस फार्मूला को रीअरेंज कर लिखा है। अब हम क्या करें उस फार्मूला में, दैट इज द लास्ट स्लाइड। तो इसमें ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर वी एंड देन द डायमेंशंस। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, मीन एफ के डायमेंशन पुट करेंगे, इस तरीके से आप पास के रेडियस के डायमेंशन और स्पीड v की डायमेंशन हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए हमने क्या किया है डायमेंशन का इस्तेमाल किया दैट इज फोर्स रेडियस एंड देन दिस इज स्पीड v। तो इन राइट हैंड साइड ये हमने पहले लिखा जी ईटा, तो उसके फार्मूले में हमने क्या किया डायमेंशन स्टार्ट किए। तो ये आप पास के फोर्स के डायमेंशन एंड देन डिवाइडेड बाय लेंथ इसके डायमेंशन एंड देन आपके पास स्पीड के डायमेंशन हमने डायमेंशन स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जी। आप यहाँ देखें आप पास मैथ का है कि ये डायमेंशन, तो ये हमने एक जगह पर लिख लिया इसकी पावर 1 है जी। उसके बाद आप देखें यहाँ पास लेंथ इधर पावर 1 है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है आपके पास 2 है जी। अब हमने क्या किसी सॉल्व किया तो ये 2 पावर क्या आ जाएगी ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। जैसे आपको पहले बताया कि आगे वेरिएबल क्या हो सेम हो, ठीक है। अगर वेरिएबल सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड या माइनस होते हैं। तो ये हम देखते हैं 1 - 2 ये हमने रूल अप्लाई कर लिया, एक्सपोनेंट रूल आपने मैथमेटिक्स में क्लास 10th में आपने स्टडी किया था जी। उसके बाद देखें यहाँ आप पास टाइम है, इधर आप पास इसका एक्सपोनेंट क्या है -2 है यहाँ देख लें, और यहाँ आप पास का एक्सपोनेंट क्या है -1 है। जब ये डिनोमिनेटर से टर्म ऊपर जाती है तो उसका सिंबल क्या होता है, एक्सपोनेंट का सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। ये आप देख रहे हैं नीचे इसका सिंबल माइनस था, ये इधर आ क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल क्या है इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपने इसे सॉल्व किया कैलकुलेट किया -2 + 1 तो आपके पास क्या आ गया ये -1 आ गया। और यहाँ भी इसको हमने 1 - 2 इसको सॉल्व किया तो यहाँ आपके पास क्या है एक्सपोनेंट क्या है -1 आ गया जी। तो यूं हमारे पास क्या ईटा के ये डायमेंशन आए हैं m l इनवर्स t इनवर्स। तो ये हमने क्या किया अपना एक टारगेट कंप्लीट कर लिया है कि ईटा जो आपके पास है डेराइव क्वांटिटी है, हमने इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद क्या ऐसा यूनिट क्या होती है, तो हमने फार्मूला में क्या करना है उसके डायमेंशन यूनिट्स पुट कर देनी है। इसमें आप ये देखें तो मैस की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, ये देखिए मैंने किलोग्राम अप्लाई कर दी। आगे आपके पास क्या है लेंथ है, इसकी यूनिट क्या है
मीटर है तो ये मीटर इनवर्स, क्योंकि उसकी एक्सपोनेंट तो माइनस में है। आगे आपके पास टाइम टी है, तो टाइम क्या आपके पास यूनिट होती है सेकंड, और इस तरह पावर -1 है, ये -1, तो आपके पास की यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, इसकी यूनिट भी फाइंड आउट कर ली है। यानी हमने इसके यूजेस में डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, होमोजेनिटी प्रिंसिपल फिजिकल इक्वेशन उसको वेरीफाई करने के लिए, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक करने के लिए, उसका फार्मूला यूज करके बोथ साइड पे डायमेंशन पुट करते हैं। एक बोथ साइड इक्वेशन डायमेंशन ऑन बोथ साइड इक्वेशन आर सेम, तो हम कहते हैं ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। और उसके बाद जो है हमने कहा कि इसमें